हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन्स पोयम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। बिफोर स्टडीइंग द पोयम, we shall see the short introduction to the poet, and later on we shall study the poem. Friends, John Milton, an eminent writer in English literature. After William Shakespeare, his name can be taken as one of the influential and prominent writers in British literature. फ्रेंड्स, ऐसे इस पोएट का जन्म जो हुआ था वो दिसंबर 9th 1608 में लंदन में हुआ था। एंड ही वॉज just not the poet, but a pamphleteer and a historian, and considered the most significant English author after William Shakespeare. Friends, आज की जो पोएम हम स्टडी करने जा रहे हैं, When I consider how my light is spent, very important message has been given by him to the readers and the people in society in common. वो मैसेज जो है वो उन्होंने खुद के लिए भी कंसिडर किया हुआ है और औरों के लिए भी। तो वो कहते हैं कि द पर्सन इज बेस्ट नोन बाय हिज वर्क्स। अपने काम की वजह से हम जाने जाते हैं और वो काम जो है वो ईश्वर ने हमें करने के लिए इस अर्थ पे भेजा हुआ है, या फिर we are sent here or we are taken birth here on the earth in order to complete the specific task only, and that task is given to you by the God himself. And if we honestly complete our task, it serves the intention of the God. अगर हम अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, पूरे डिवोशन के साथ करते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू सर्व द गॉड। ऐसा भी मैसेज उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू दिया है। फ्रेंड्स, throughout his life he is known with the other name also, that was Christ Lady, because he was very delicate by his physique, very weak and fragile, and he had a long hairs, as you can see in the picture also, which is given by me in the video. And one more thing is he was very fair, बहुत ही गोरे रंग के, गोरे चिट्टे ऐसे, और बहुत ही दुबले पतले से वीक पर्सनालिटी के थे जॉन मिल्टन, और इसीलिए उनको कॉलेज में क्राइस्ट लेडी ऐसा भी कहा जाता था, और इस नाम से भी वो बहुत ही पॉपुलर हुए थे, क्राइस्ट लेडी के नाम से। उनके बाल भी काफी लंबे थे, और एज यू कैन सी दैट these hairs were brown also. He looked like a lady, and that is the reason why the fellow students called him with the name Christ Lady. Friends, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थ्रू आउट हिज लाइफ, एज ही वॉज क्वाइट वीक एंड फ्रेजाइल, ही यूज टू सिट एंड राइट एंड do the work of his writing. Throughout his life, he has devoted his whole time for the writings only, and very popular and best works have been created by him, such as Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agnostis, then कॉमर्स, लिसिडास, ऐसे और भी कई पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं और बहुत ही पॉपुलर भी हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक पैम्फलेट भी पब्लिश किया था एरियोपेजिटिका नाम से, वेयर ही एक्चुअली mentions that how much control the government should have
or how much restrictions the government should have on the press. That means the pamphlet was about the press liberty. एरोपेजिटिका नाम से एक पैम्फलेट उन्होंने पब्लिश किया था जहां पे उन्होंने प्रेस की लिबर्टी के बारे में बात की थी. तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही स्टडी किया जाने वाला पैम्फलेट था. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी हाउ मेनी वर्क्स he had published. Lycidas of Education of Reformation touching church discipline in England, on Shakespeare, on the 5th of November, on the morning of Christ's Nativity, Paradise Lost, the second defense of English people by John Milton. तो बहुत से ऐसे वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे थे. अब we shall turn towards the poem When I Consider How My Light is Spent. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है एक सोनेट है. सोनेट जो लिखा है उन्होंने, तो इट वॉज रिटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. दैट मीन्स एट द एज ऑफ 42 ही बिकेम ब्लाइंड, ही लॉस्ट हिज आई साइट. और उसके बाद जो पेनफुल एक्सपीरियंस था उनका, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है. और उसी के साथ ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि शायद इट इज द गॉड्स विश दैट आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड आल्सो he has to complete his task, or he has to accomplish the task which is given to him by the God himself, and that can be the best way to serve the God. So friends, let us study the poem When I Consider How My Light is Spent. Friends, देखिए, line by line, first of all I shall read the poem and then I shall explain it to you. Please concentrate. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present, my true account list, he returning child, that God exact day labor light denied. Friends, इस पोएम में लाइट जो है, दैट इज द मेटाफर यूज्ड फॉर लाइफ. लाइफ के लिए एक मेटाफर उन्होंने यूज किया है, और वो लाइट का मेटाफर है लाइफ के लिए. तो एक्चुअली वी हैव टू कंसिडर इट एज अ लाइफ ओनली. सो फ्रेंड्स, देखिए वो कहते हैं, अब पहले ही मैंने यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दिया है कि दैट इज द सोनेट विच हैज बीन रिटन बाय हिम, एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस. उसमें जो 19th सोनेट है, या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस को भी हम इसी टाइटल से जानते हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट इज द विश ऑफ द गॉड दैट आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड आल्सो आई मस्ट हैव टू सर्व हिम एनी हाउ. दैट मीन्स दो आई हैव लॉस्ट माय आई साइट, then also I have to complete or accomplish the task which is given to me. ईश्वर ने जो भी टास्क मुझे कंप्लीट करने के लिए इस धरती पर भेजा है, तो उसे मुझे कंप्लीट करना है. एक उनके मन में धारणा है. और बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक मैसेज उन्होंने दिया है कि लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूं और वो नहीं हो रहा है. तो मिल्टन यहाँ पे कहते हैं कि दैट ऑल्सो इज द विश ऑफ द गॉड. वो भी एक ईश्वर की ही इच्छा है कि जो आप करने जा रहे हैं, अगर वो घटित नहीं हो रहा है, तो वो भी ईश्वर की इच्छा ही है. उसकी इच्छा ये है कि जो वो करने वाला है उसे आप एक्सेप्ट कर लो. दैट मीन्स वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच ही इज गोइंग टू गिव टू अस. ईश्वर जो आपको देने वाला है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि इस बात पर आपको दुखी होना है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर मैं वो चीज कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कर नहीं पा रहा हूं, या फिर वो टास्क मैं
कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है कि अगर आप कोई बात कर नहीं सकते हैं, यू आर इनकेपेबल ऑफ performing any task, that also is the wish of the Lord, and you have to behave or you have to work according to the wish of the Lord only. When I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide. तो यहाँ पे he is repenting on the fact, or he is quite upset with the fact that he has lost his eyesight. In the first two lines, the beginning lines, पहले के दो जो लाइंस है वहां पे वो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, आई हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विथ मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो वो कहते हैं कि मेरे वर्क के थ्रू, मेरे राइटिंग के थ्रू मैं ईश्वर को सर्व कर रहा हूँ, और अगर इस एज में मेरी आईसाइट चली जाती है तो मैं अब अपने वर्क के थ्रू और अपने राइटिंग के थ्रू ईश्वर को सर्व नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उनको लग रहा है, और उसके कारण वो बहुत ही दुखी है। ही इज सॉरोफुल, ही इज क्वाइट अपसेट विद द फैक्ट दैट he has lost his eyesight. उनकी दृष्टि चले जाने से वो बहुत ही दुखी है, और उनको लगता है कि God has given me a task of writing and so many things, so many works I have to publish uh, in the later life also, but how can I write, because I am unable to write, I am unable to read the works, other works also. That means मैं अब कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ, तो पढ़ नहीं सकता हूँ तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये बात उनके मन में आ रही है, और बार बार वो ये सोचे जा रहे हैं कि ईश्वर ने ये किस प्रकार की लाइफ में मुझे भेज दिया है, बहुत ही डार्क है और बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसमें जो मुझे काम करना था ईश्वर को सर्व करने के लिए, मेरा लिखने का काम है जो उसने मुझे दिया है, एक बहुत ही अच्छा टैलेंट उसने मुझे दिया है जिसके थ्रू मैं उसको सर्व कर रहा था, तो अब मैं वो कहीं ना कहीं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ और लिख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट जो है कंप्लीटली चली गई है और मैं अंधा हो चुका हूँ। तो फिर इस तरह से मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो ये एक बात वो बहुत ही दुखी होके कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। दैट मीन्स उन्होंने मेरी लाइफ से लाइट निकाल दी है, या फिर अब मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरी आईसाइट क्या है, कंप्लीटली चली गई है, तो मैं अब क्या करूं, ये एक बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। He says that when I think about how I went blind, अपने लाइफ के इस मोड़ पर है वो, at the age of 42, that means in the late 50s, 1650s, he lost his eyesight, midpoint of life, and the world became dark for him. God had bestowed the greatest talent to him of writing, और अब मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ, या फिर आई हैव लॉस्ट माई आईसाइट, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। ये सोच सोच के वो बहुत ही दुखी होए जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God does not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. So friends, ये भी उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक रियलाइजेशन उनके मन में आ जाता है कि मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, इस बात को सोच सोच के
कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूं, मैं अंध हो चुका हूं और अब मैं ईश्वर को सर्व नहीं कर पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। पर ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, ये यहाँ पे उनको रियलाइज होता है, क्योंकि दैट मे ऑल्सो बी द विश ऑफ द लॉर्ड। ये शायद ईश्वर की कोई बहुत बड़ी इच्छा है, कोई प्लानिंग है। तो लेट हिम अकॉम्प्लिश हिज टास्क एंड लेट मी कंप्लीट माय टास्क। ऐसा वो कहते हैं कि मेरे थ्रू, मेरे ब्लाइंड होने के बाद भी अगर ईश्वर को कोई काम करना है मेरे थ्रू, तो वो कर सकता है। और ईश्वर मेरे थ्रू जो काम करवाना चाहता है वो मैं करके रहूंगा, दो आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी ही एक पॉजिटिविटी का मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है। एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है कि ही इज टोटली कनेक्टेड टू द गॉड। ही इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड in the sense that he thinks that it is the wish of the Lord. Whatever is going to happen in my life, it is the wish of the Lord, and I am not responsible for anything that may be the good or the bad or good or the evil. जो कुछ भी मेरी लाइफ में मैंने किया है या फिर जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसके लिए मैं या फिर और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कुछ अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा है और इसलिए मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। अगर उसने मुझे अंध किया है, मुझे दृष्टिहीन किया है, तो शायद ये भी उसकी ही विल है और मुझे अंध करने के बाद भी शायद वो कोई काम मुझसे करवाना चाहता है। इस तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ वो शुरू कर देते हैं व्हेन ही लॉस्ट हिज आईसाइट। सो देखिए, डज गॉड वांट मी टू डू वर्क दैट रिक्वायर्स साइट आफ्टर डिनाइंग मी दैट साइट, बट माय इंटरनल सेंस ऑफ पेशेंस in an effort to stop that bad thought quickly replies, God does not need man's work. क्या कहते हैं वो? God does not need either man's work or his own gifts. ईश्वर को हम अपने काम के थ्रू प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, या फिर हमारे कुछ गिफ्ट्स हम नारियल फोड़ेंगे या फिर कुछ स्वीट्स देंगे या फिर पैसा देंगे, डोनेट करेंगे तो ईश्वर शायद खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज द गिफ्ट विच इज गिवन बाय गॉड टू अस। ये हमें समझना है। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो ही एक गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास से उसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ना ही शुगर, ना ही स्वीट्स और ना ही पैसा। तो ये बात मिल्टन ने यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। वो कहते हैं, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर को हमारी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। He just have sent to us on the earth in order to accomplish the task which he intended. ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा है तो कोई काम करने के लिए भेजा है, वो उसका इंटेंशन कंप्लीट करने के लिए भेजा है। हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये लाइफ हम खुद जी रहे हैं या फिर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। वो सारी बातें हमें अलग रखनी है और ये समझना है कि जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। तो ये बात हमें यहाँ पे मिल्टन ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक। तो यॉक इज हियर द सिंबल दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, इम्पोज्ड एरिया। गॉड ने हमें क्या किया है? एक इम्पोज टैलेंट दिया है, एक रिस्ट्रिक्टेड टैलेंट दिया है। देखिए, हम वर्सेटाइल कहते हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी उस पर्सन में रहते हैं, पर्सनालिटी में रहते हैं। तो जो कुछ भी वो करवाना चाहता है उतना ही टैलेंट उस व्यक्ति में रहता है और उतना ही काम वो कर सकता है। उसकी एबिलिटीज उससे ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूं
कि मैं सिंगर बन जाऊं, मैं डांसर बन जाऊं, मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊं, या फिर अगर मैं ये चाहूं कि मैं एक बहुत ही अच्छा सोशलिस्ट बन जाऊं, तो एट अ वन टाइम आई कैन नॉट परफॉर्म ऑल दीज टास्क। ये बात हमें समझ लेनी है कि एक ही टैलेंट या फिर ईश्वर ने जो चाहे हैं वही टैलेंट हमें मिले हैं। एट अ वन टाइम वी कैन नॉट परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टास्क एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स पे हम डिफरेंट टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक ही घड़ी में। तो ईश्वर ने हमें जो काम करने के लिए भेजा है हम वही काम कर सकते हैं। राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सोशलाइजिंग, ये सभी काम हम एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, और इतना टैलेंट हमें ईश्वर ने नहीं दिया है, तो इसके लिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि who best bear his mild yoke, they serve him best. That means जो काम करने के लिए उसने हमें यहाँ पे भेजा है, अगर वो टास्क हम कंप्लीट कर देते हैं तो we best serve him, we serve him best. ईश्वर ने जो काम करने के लिए हमें भेजा है, अगर वो हम कंप्लीट कर देते हैं तो उससे अच्छी सेवा ईश्वर के लिए हमारी तरफ से दूसरी कोई भी नहीं है। ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। His state is kingly. अब वो ईश्वर की स्टेटस बता रहे हैं। ही इज अ किंग, ही इज अ किंग ऑफ यूनिवर्स। कौन? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ही इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. ऐसे हजारों लोग हैं या फिर हजारों जीव हैं जो लैंड और ओशन पे उसकी मर्जी से चल रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और वो भी बहुत अच्छी तरह से उसको सर्व करते हैं जो कि वेट करते हैं। He serves the best who serves last. Sorry, he serves the best who serves the last. That means who waits also serves him the best. That means हम इंतजार करें कि कब हम में वो कैपेबिलिटीज आ जाएंगी जब हम हमारा टास्क अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके लिए अगर हमें वेट करना पड़े तो भी ठीक है, और अगर हम में उतना पेशेंस है तो हम वेट करें। ये वेटिंग और ये पेशेंस भी एक अच्छी सेवा ईश्वर के लिए उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पोएम समाप्त हो जाती है। I expect कि all of you have understood this poem very well. If you have any doubt concerning the poem, then you can comment me in the comment section. Thank you for watching this video. Thank you very much. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you friends.